Hello everyone, welcome back to YouTube channel The Knowledge Library. In today's video of UPSC series on Ancient India with episode 9 we are focusing on the Mauryan Empire. In this video you will get to solve a carefully selected set of important MCQs that will help you revise key concepts and strengthen your preparation for UPSC, State PCS, SSC and other competitive exam. So let us start. The first question is, Who founded the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसारा और ऑप्शन डी बिंबिसारा. The correct answer is option B, Chandragupta Maurya. The next question is, which dynasty was overthrown by Chandragupta Maurya? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया था? ऑप्शन ए हर्यंका डायनेस्टी, ऑप्शन बी शिशुनागा डायनेस्टी, ऑप्शन सी नंदा डायनेस्टी और ऑप्शन डी गुप्ता डायनेस्टी. The correct answer is option C, Nanda dynasty. The next question is, what was the capital of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी उज्जैन. The correct answer is option C, Patliputra. The next question is, who was the chief advisor and teacher of Chandragupta Maurya? चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार और गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी कालिदास. The correct answer is option B, Chanakya. The next question is, which Greek ambassador visited the court of Chandragupta Maurya? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? ऑप्शन ए फाहिम, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी ह्यूनसांग और ऑप्शन डी स्ट्रैबो. The correct answer is option B, Megasthenes. The next question is, which book was written by Megasthenes? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राजतरंगिणी और ऑप्शन डी अष्टाध्यायी. The correct answer is option B, Indica. The next question is, who succeeded Chandragupta Maurya as the ruler of the Mauryan Empire? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी दशरथ और ऑप्शन डी बृहद्रथा. The correct answer is option B,
Bindusar. The next question is, which Mauryan ruler was known by the Greek name Amitrochates? किस मौर्य शासक को यूनानी स्रोतों में एमिट्रोकेट्स कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोका और ऑप्शन डी दशरथ. The correct answer is option B Bindusar. The next question is, which Mauryan ruler fought the Kalinga War? किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोका और ऑप्शन डी बृहदत्ता. The correct answer is option C Ashoka. The next question is, which battle transformed Emperor Ashok's life? किस युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को बदल दिया? ऑप्शन ए बैटल ऑफ हिरदस्पेस, ऑप्शन बी कलिंगा वॉर, ऑप्शन सी बैटल ऑफ पानीपत और ऑप्शन डी बैटल ऑफ प्लासी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कलिंगा वॉर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which religion did Ashok adopt after the Kalinga War? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म और ऑप्शन डी ज़ोरास्ट्रियनिज्म. The correct answer is option B Buddhism. The next question is, which script was primarily used in Ashok's inscriptions? अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी ग्रंथा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्राह्मी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which script was used in Ashok's inscription found in northwestern India? उत्तर पश्चिम भारत में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोस्ती, ऑप्शन सी नागरी और ऑप्शन डी ग्रीक. The correct answer is option B खरोस्ती. The next question is, which title was used by Ashok in his inscriptions? अशोक ने अपने अभिलेखों में किस उपाधि का प्रयोग किया? ऑप्शन ए महाराजा धीराजा, ऑप्शन बी देवानम प्रियम प्रियदर्शी, ऑप्शन सी चक्रवर्तीन और ऑप्शन डी सम्राट. The correct answer is option B देवानम प्रियम प्रियदर्शी. The next question is, which Mauryan ruler convened the Third Buddhist Council? किस मौर्य शासक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी दशरथ। The correct answer is option C Ashok. The next question is, where was the third Buddhist council held? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी सारनाथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी मोगालीपुत्ता तिस्सा और ऑप्शन डी नागार्जुन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोगालीपुत्ता तिस्सा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which famous book on administration was written by चाणक्य? चाणक्य द्वारा प्रशासन पर कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी महाभाष्य और ऑप्शन डी मनुस्मृति। The correct answer is option B अर्थशास्त्र। The next question is, which foreign ruler signed a peace treaty with चंद्रगुप्त मौर्य? किस विदेशी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शांति संधि की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी डायरियस वन और ऑप्शन डी एंटियोकस थ्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉन्यूमेंट ऑफ अशोका हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? अशोक के किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है? ऑप्शन ए बुल कैपिटल, ऑप्शन बी एलिफेंट कैपिटल, ऑप्शन सी लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ और ऑप्शन डी हॉर्स कैपिटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लायंस आर विजिबल इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। The correct answer is option C 3. The next question is, how many spokes are there in the अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 28।
The correct answer is option C, 24. The next question is, which province served as the northwestern administrative center of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी सुवर्णागिरी, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी तोसाली। The correct answer is option C, Takshila. The next question is, which province served as the western administrative center of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तोशाली और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। The correct answer is option B, Ujjain. The next question is, who was the last ruler of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी बृहद्रथा और ऑप्शन डी बिंदुसार। The correct answer is option C, Brihadratha. The next question is, who founded the Shunga dynasty after overthrowing the last Mauryan ruler? अंतिम मौर्य शासक को हटाकर शुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंगा, ऑप्शन बी कनिष्का, ऑप्शन सी हर्षा और ऑप्शन डी समुद्रगुप्ता। The correct answer is option A, Pushyamitra Shunga. The next question is, which source provides a detailed account of the Mauryan administration? मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण किस स्रोत से मिलता है? ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी हर्षचरित और ऑप्शन डी एन.ए. अकबरी। The correct answer is option B, अर्थशास्त्र। The next question is, which feature made the Mauryan Empire unique in ancient India? प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी फेडरल सिस्टम और ऑप्शन डी ट्राइबल रूल। द करेक्ट आंसर इज option B, highly centralized administration. The next question is, which religion spread to Sri Lanka during Ashok's reign? अशोक के शासनकाल में कौन सा धर्म श्रीलंका तक पहुंचा? ऑप्शन ए हिंदुइज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म और ऑप्शन डी ज़ोरास्ट्रियनिज्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बुद्धिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉडर्न रूलर इज रिमेंबर्ड फॉर प्रमोटिंग द पॉलिसी ऑफ धम्मा? धम्मा की नीति को बढ़ावा देने के लिए किस मौर्य शासक को याद किया जाता है?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसारा, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी बृहदत्ता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अशोक। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।